Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to start Democratic Politics, that is PS, chapter number 1, that is power sharing. What is power sharing? Now, power sharing here simply means that living in a democratic country, powers should be shared among different levels of government so that decisions may be taken quickly and there will be no problems of any thing. Okay, so now let's start this chapter with the story of two countries. First we will start the story of Belgium. Now Belgium, a small country in Europe, smaller than Haryana in terms of area. Means Belgium is a small country in Europe, smaller than Haryana. हमारे इंडियन स्टेट में हरियाणा से भी स्मॉलर कंट्री बेल्जियम इन टर्म्स ऑफ एरिया. इट हैज़ बॉर्डर्स विथ फ्रांस, नीदरलैंड्स, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. उसकी बॉर्डर्स, बेल्जियम की जो बॉर्डर है, इट शेयर्स इट्स बॉर्डर विथ फ्रांस, नीदरलैंड, जर्मनी एंड लग्जमबर्ग. Now, when we talk about the population of this country, it has a population of 1 crore, half the population of Haryana. Even this Belgium country was smaller than Haryana in terms of area, and even हरियाणा का हाफ पॉपुलेशन बेल्जियम में है. इट हैज़ अ पॉपुलेशन ऑफ 1 crore, so we can estimate that the population of Haryana may be 2 crore. The ethnic composition of this country is very complex. Now here the word ethnic, it means that it is a social division based on shared culture, different types of culture people belonging to the same ethnic group, means culture, believe in their common descent because of their similarities of physical type of culture or both. Okay, so ethnic composition, अगर हम religious बोले तो the composition of this country is very complex. So let's see that how complex it is. Out of the total population in Belgium, 59% lives in Flemish region and speaks Dutch language. अब बेल्जियम का जो टोटल पॉपुलेशन है दैट इज़ 1 करोड़, उसका 59% पीपल, उस 1 करोड़ के 59% पीपल जो है दे लिव्स इन फ्लैमिश रीजन एंड देयर लैंग्वेज इज़ डच. अनदर 40% पीपल जो है दे लिव इन वेलोनिया रीजन एंड दे स्पीक फ्रेंच लैंग्वेज. ओके, रिमेनिंग 1% ऑफ बेल्जियम they speak German language. So this is how the Belgium is divided. Okay, so you have to remember here that 59% of the Belgium people lives in Flemish region, they speak Dutch language. 40% people live in Wallonia region, they speak French language, and 1% means out of 100% जो 1% left है तो 1% of Belgians speak German language. So here we can see that 40% that comes in minority, they speak French, and 1% तो वो सबसे कम है जो जर्मन बोलते हैं. सो यहाँ पे मेजॉरिटी हुई डच पीपल की, दे पीपल स्पीकिंग डच लैंग्वेज, उनकी मेजॉरिटी है. नाउ बेल्जियम का जो कैपिटल सिटी था दैट इज़ ब्रुसेल, उसमें से 80% पीपल स्पीक फ्रेंच while 20% are Dutch speaking. Now here you can compare the capital city Brussels with Belgium, because in Belgium Dutch people were in majority, but in Brussels French people are in majority. So here it is written that in the capital city Brussels 80% people speak French while 20% are Dutch speaking, और वहाँ पे उल्टा था 59% डच स्पीकिंग थे और 40% फ्रेंच स्पीकिंग पीपल थे. The minority French speaking community was relatively rich and powerful. यहाँ पे जो minority French speaking community जो थी, of course they were relatively rich and powerful. This was resented by the Dutch speaking community who got the benefit. अब यहाँ पे French speaking community जो थे वो rich थी, वो powerful थी. Obviously they were in large number, 80% people थे, so they were in majority obviously. So उनकी वजह से it was resented, like a feeling of bitterness by the Dutch people कि जिनको इकोनॉमिक डेवलपमेंट का बेनिफिट बहुत बाद में मिला, इवन द एजुकेशन दे गॉट आफ्टर मैनी ईयर्स. सो यहाँ पे फ्रेंच पीपल बहुत रिच थे, पावरफुल थे, एजुकेशन वाइज एवरीथिंग वाज गुड,
but the Dutch people got all the facilities, got all the benefit of economic development and education much later than that of French speaking community. During the 1950s and 1960s, tension between Dutch speaking and French speaking communities created due to their differences. Obviously, जहाँ पे two communities के people आएंगे तो वहाँ पे problems, issues, it is going to happen. So 1950s and 1960s में टेंशन बिटवीन डच एंड फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज़ जो थी वो क्रिएट होने लगी बिकॉज ऑफ देयर डिफरेंसेस. ब्रुसेल्स प्रेजेंटेड डिफरेंट प्रॉब्लम इन द डच स्पीकिंग पीपल कॉन्स्टिट्यूटेड अ मेजोरिटी इन द कंट्री. अब ब्रुसेल में एक डिफरेंट प्रॉब्लम हो गया क्योंकि डच स्पीकिंग पीपल दे कॉन्स्टिट्यूट मेजोरिटी इन द कंट्री में मेजोरिटी है. मैंने बोला आगे ही कि डच स्पीकिंग की कंट्री में मेजोरिटी थी, लाइक दे वर 59%, बट यहाँ पे ब्रुसेल में सिर्फ 20% थे, बट अ माइनॉरिटी इन द कैपिटल, राइट. सो इनका एक प्रॉब्लम ही डिफरेंट हो गया. So that was the story of Belgium. Now let us take another story, that is the story of Sri Lanka. What Sri Lanka says is, Sri Lanka is an island nation situated to the south of India with a population of about 2 crore, same as in Haryana. Again, Sri Lanka is compared with Haryana where the population is about 2 crore, same as in Haryana. Like other nations in South Asia region, Sri Lanka has a diverse population. Even Sri Lanka had a diverse population जहाँ पे different type of people were living, different religion people. Major social groups are, जैसे हमने बेल्जियम में देखा कि Dutch speaking people, French speaking people were there. Accordingly, in Sri Lanka also social groups were there like Sinhala speakers, that is 74% of the people were Sinhala speakers and 18% people were Tamil speakers. वो तमिल बोलते थे बिकॉज सदर्न पार्ट है तो वहाँ पे साउथ लैंग्वेज जो थी इट वॉज इन मेजोरिटी. सो यहाँ पे श्रीलंका को अगर सेग्रीगेट करें तो सिंहाला स्पीकर्स वर 74%, तमिल स्पीकर्स वर 18%. तमिल्स वर डिवाइडेड इनटू 2 ग्रुप्स. अब जो हमने 18% के तमिल्स जो देखे तो इट वॉज फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 टाइप्स, दैट इज़ श्रीलंकन तमिल्स 13% तमिल नेटिव्स ऑफ द कंट्री. वहाँ के तमिल नेटिव्स पीपल थे. आउट ऑफ 18%, 13% वर तमिल नेटिव्स. द रेस्ट हुज forefathers came from India as plantation workers during colonial period are called Indian Tamils. अब हमने देखा कि ये जो 18% तमिल स्पीकर्स थे उसको अगेन सेग्रीगेट किया है, डिवाइड किया है. उसमें से 13% श्रीलंकन तमिल्स थे एंड जो रेस्ट जो थे वो इंडियन तमिल्स. तो इंडियन तमिल्स कौन से? तो जिनके फोरफादर्स इंडिया से आए थे एज प्लांटेशन वर्कर्स. जब कॉलोनियल पीरियड चल रहा था, जब हमें कोई ऑलरेडी रूल कर रहा था, तो तब जिनके फोरफादर्स आ गए थे फ्रॉम इंडिया तो उनको इंडियन तमिल्स कहते हैं. Now Sri Lankan Tamils were concentrated in the north and east of the country. जो श्रीलंकन तमिल्स है 13%, वो लोग नॉर्थ और ईस्ट पार्ट के, श्रीलंका के नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में रहते हैं. मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग पीपल आर बुद्धिस्ट. हमने जो आगे देखा सिंहाला पीपल जो 74% है, दे वर बुद्धिस्ट, मतलब वो लोग बुद्ध भगवान को मानते हैं. वाइल मोस्ट ऑफ द तमिल्स आर हिंदूज और मुस्लिम्स. और बाकी के जो तमिल्स थे, रेस्ट 74% के बाद जो बाकी के जो तमिल्स थे देवर हिंदूज और मुस्लिम्स, और उसमें से 7% क्रिश्चियंस थे हु आर बोथ तमिल एंड सिंहाला. तो ये 7% क्रिश्चियन जो थे वो सिंहाला भी थे, तमिल भी थे. सो दिस इज़ ऑल अबाउट श्रीलंका. सो अगेन वी विल रिवाइज इट दैट श्रीलंका में 2 टाइप्स ऑफ स्पीकर्स, दैट इज सिंहाला स्पीकर्स, तमिल स्पीकर्स. Sinhala speakers were 74%, Tamil speakers were 18%. Now out of that 18% again it is divided into 2. वो तमिल speakers कौन से थे? तो एक श्रीलंकन तमिल्स, वो वहाँ के नेटिव्स, राइट, वहाँ के नेटिव्स है. एंड रेस्ट वर द इंडियन तमिल्स जिसके फोरफादर्स दे केम फ्रॉम इंडिया एज प्लांटेशन वर्कर्स ड्यूरिंग कॉलोनियल पीरियड. नाउ अगर श्रीलंकन तमिल्स की बात करें तो देवर कॉन्सेंट्रेटेड, मीन्स देवर लिविंग इन द नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट ऑफ द कंट्री. और फिर मोस्ट ऑफ द सिंहाला स्पीकिंग पीपल जो थे देवर बुद्धिस्ट, और बाकी के जो तमिल्स थे देवर हिंदूज और मुस्लिम्स. और फिर 7% क्रिश्चियंस वर देयर हु वर बोथ तमिल एज वेल एज सिंहाला स्पीकर्स. सो दैट वॉज ऑल अबाउट श्रीलंका. Now, majoritarianism in Sri Lanka.
As we have seen the segregation in Sri Lanka, let's talk about it. Sri Lanka emerged as an independent country in 1948. Sri Lanka को 1948 में इंडिपेंडेंस मिल गया. Of course, the leaders of the Sinhala community sought to secure dominance over government by virtue of their majority. वहाँ के जो लीडर्स थे सिंहाला कम्युनिटी के, वो लोग डोमिनेट करने लगे बिकॉज दे वर इन मेजॉरिटी. डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट एडोप्टेड अ सीरीज ऑफ मेजॉरिटेरियन. अब जब इंडिपेंडेंस मिल गया उसके बाद डेमोक्रेटिकली इलेक्टेड गवर्नमेंट जो थे उन्होंने सिंहाला सुप्रीमेसी को, सिंहाला को आगे बढ़ाने के लिए कौन से मेजर्स जो थे वो कौन से फॉलो करना स्टार्ट कर दिया. फर्स्ट, सिंहाला वॉज कंसिडर्ड एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज डिसरिगार्डिंग तमिल. वाई सो? बिकॉज सिंहाला कम्युनिटी मेजॉरिटी में थी. द लीडर्स बिलोंग टू द सिंहाला कम्युनिटी. सो उन्होंने सिंहाला को ऑफिशियल लैंग्वेज डिक्लेयर कर दिया और तमिल को डिसरिगार्ड कर दिया. दे स्टार्टेड डोमिनेटिंग देम. नाउ द गवर्नमेंट फॉलोड प्रेफरेंशियल पॉलिसीज दैट फेवर्ड सिंहाला. गवर्नमेंट भी ऐसे ही पॉलिसीज और वो सब एडॉप्ट करती थी जिससे सिंहाला को फेवर रहे. एंड दे वर अगेंस्ट तमिल्स इवन इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सिटी पोजीशन, गवर्नमेंट जॉब्स. तो ये सब में प्रेफरेंस, फर्स्ट प्रेफरेंस व गिवन टू सिंहाला स्पीकर्स ओनली. यूनिवर्सिटी पोजीशन और गवर्नमेंट जॉब्स हो तो ऑल दिस अपॉर्चुनिटी वर गिवन ओनली टू सिंहाला स्पीकर्स. Now this decisions gradually increase the feeling of alienation among Sri Lankan Tamils. Of course, जो तमिल्स श्रीलंका में रह रहे थे उनको तो दे विल फील एलियनेटेड. उनको अकेलापन तो ऑफकोर्स फील होगा बिकॉज दे विल सी दैट कि सबसे ज़्यादा प्रेफरेंस, फैसिलिटीज़, बेनिफिट्स जो है वो सब सिंहाला स्पीकर्स को मिल रहे हैं. सो दिस इंक्रीज्ड द फीलिंग ऑफ एलियनेशन अमॉन्ग द तमिल्स ऑफ श्रीलंका. द श्रीलंकन तमिल्स लॉन्च पार्टीज. अब श्रीलंकन तमिल्स ऐसे तो नहीं बैठेंगे, दे विल ऑल्सो फाइट फॉर देयर फ्रीडम. सो दे लॉन्च पार्टीज, दे फॉर्म ग्रुप्स एंड स्ट्रगल फॉर रिकग्निशन ऑफ तमिल एज एन ऑफिशियल लैंग्वेज. अब जैसे सिंहाला लोगों ने ऑफिशियल लैंग्वेज सिंहाला बना दिया, वैसे ही तमिल को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाने के लिए दे ऑल्सो स्टार्टेड मैनी थिंग्स. लाइक उन्होंने भी स्ट्रगल करना स्टार्ट कर दिया for regional autonomy and equality of opportunity in securing education and jobs. तो they also thought that हमें भी education और jobs ये सब में opportunity मिलनी चाहिए. So we will also struggle for the freedom. So उनको तमिल official language बनाना था. So now on the one side Sinhala was considered official language, on the other side Tamil started struggling for becoming Tamil as an official language. So by 1980s, several political organizations were formed demanding an independent Tamil in north and east parts of Sri Lanka. अब 1980s तक तो क्या होने लगा, बहुत सारे पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जो थे इट वाज फॉर्म और वो लोग क्या डिमांड कर रहे थे, एक इंडिपेंडेंट तमिल. ये सब तमिल की मेजोरिटी जितने तमिल पीपल थे दे स्टार्टेड स्ट्रगलिंग इन द नॉर्थ एंड ईस्ट पार्ट्स ऑफ श्रीलंका. क्योंकि ऑलरेडी नॉर्थ और ईस्ट पार्ट में सिंहाला रहते थे तो उन्होंने फॉर्म किया कि हमें एक इंडिपेंडेंट तमिल चाहिए, तमिल लैंग्वेज के पीपल, तमिल कम्युनिटी. इट सून टर्न्ड आउट इनटू अ सिविल वॉर. और ये सिविल वॉर में थाउजेंड्स ऑफ पीपल ऑफ बोथ द कम्युनिटीज हैव बीन किल्ड. बिकॉज ऑफ दिस ये सिविल वॉर हुआ जस्ट बिकॉज ऑफ तमिल एंड सिंहाला के वजह से. And thousands of people of both the communities have been killed. Many families were forced to leave the country as refugees and many more lost their livelihoods. So बहुत प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई थी. इवन श्रीलंकाज एक्सीलेंट रिकॉर्ड ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जो आफ्टर इंडिपेंडेंस उनका जो रिकॉर्ड था कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट बढ़ रहा है, एजुकेशन वाइज, हेल्थ वाइज दे आर इम्प्रूविंग. बट ये जो सिविल वॉर हुआ it has caused a terrible setback to the social, cultural and economic life of the country. और ये जो सिविल वॉर हुआ उसके वजह से उनकी सोशल लाइफ, कल्चरल लाइफ एंड इकोनॉमिक लाइफ पूरी स्पॉइल हो गई थी और जितना डेवलपमेंट हुआ था वो सब ख़त्म हो गया इन शॉर्ट. सो दैट वाज अबाउट द मेजोरिटेरियनिज्म इन श्रीलंका. नाउ इन द नेक्स्ट टॉपिक, that is in part 2 of this chapter, we are going to study about accommodation in Belgium and forms of power sharing and so on. That's all for part 1. So if you enjoyed my video, please do like and subscribe my channel and do share it.
Thank you, and do remember to watch the second part of this chapter. Thank you.